Good everyone, dear attendees. We shall commence the webinar now. In the previous webinar on day trading and candlesticks, our research team spoke about the basics of day trading, reading the candlesticks, and how to potentially apply them using a few strategies and examples. Today's session is in continuation of that webinar, where our research team will be speaking about some high probability trading setups. Through these setups, our aim is to guide, identify, and maximize the most of the candlestick patterns so that you can make the most profit in the bull and the bear markets. Before I formally introduce the technical research team leads, I would like to mention a bit about our company, BP Wealth. We are a 70-year-old organization focusing on generating wealth for our investors through our advisory research, PMS, and stockbroking services. Even in times like these, our excellent research desk has generated decent returns for our investors. On the webinar today, we have Hansraj Modi, Head Technical and Derivatives at BP Wealth. He holds a CMT certification from New York and is a master's in finance with over 14 years of experience in the field of technicals and derivatives. He has been a part of our BP Wealth family since the past 8 years. Rohan Shah, Technical Analyst at BP Wealth, a bachelor's in financial market and CMT level 1 certification with over 7 years of experience. In the past, he has had the opportunity to work with renowned stockbroking market veterans such as Dr. C.K. Narayanan and as an associate with BP Wealth for more than 2.5 years. I would request Mr. Hansraj to commence the webinar, please. Hansraj, over to you. Hansraj? Yeah, thank you, Anuj. Good morning, everyone. I hope everyone is safe and healthy. So, about this series which we started, this is Investor Profit series, in which we are, trying to share with you the methods which we use, which are very simple to apply, and how it can help you in increasing your profitability. So just to give a recap of the last previous session which we had. So in that we discussed about what is a candlestick chart, which are the type of patterns we are looking at, and we also discussed some of the strategies and one important pattern which I guess you must have gone through. So to start with the presentation, the two topics mainly which we are going to see, which we are going to discuss. First is, we are going to share one more trading strategy, candlestick strategy, which we are going to discuss today. And apart from that, we are going to discuss about, when talking about strategies or trading in the markets, everyone is looking for that magical formula, money making formula, which can make them rich, or a particular tool which has excellent success ratio, performance, less drawdown, less failure, and जो कि बहुत अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है, both in terms of success या फिर हम जो रिटर्न्स उससे जनरेट करते हैं. So our focus is on that only. So making or trading, making money or trading, investing, in that definitely there is a lot of importance of strategies which we discuss. At the same time, there is a certain process which you need to follow. और जैसे आपने देखा होगा कई लोग होंगे कि those are not using a particular strategy. सिर्फ strategy रीजन नहीं होता उनके सक्सेसफुल होने का. There is a process which is to be followed. तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल क्या एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जिसकी वजह से एट द एंड आई शुड गेन फ्रॉम ट्रेडिंग इंट्राडे स्पेशली. और यहाँ पे जो भी मेजर हाईलाइट रहेगा वो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे ज्यादा रहेगा. डेली टाइम फ्रेम इन द सेंस कि इंट्राडे ट्रेड जो हम करते हैं उसके अंदर हमारा ज्यादा ध्यान और फोकस होगा. नाउ जस्ट टू स्टार्ट विथ रोहन, इफ यू कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड. यस. So हमने पहले डिस्कस करा था. आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ऑफ 2-5 मिनट्स सो दैट जो भी फ्रेशर्स आए हैं इट इज इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. हमने डिस्कस करा था कि कैंडलस्टिक का रियल बॉडी क्या होता है, शेडो क्या होता है, और कैंडलस्टिक का कलर कैसे डिटरमाइन होता है. तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके सामने दो कैंडलस्टिक है, एक रेड है और एक ग्रीन है.
तो ग्रीन के अंदर आप देखिए, जब भी एक तो कलर उसका डिटरमाइन, जो ग्रीन बोलते हैं या व्हाइट बोलते हैं, हम जो कहीं सॉफ्टवेयर पैकेजेस उसको व्हाइट कलर में प्लॉट करते हैं, तो जहाँ पे भी स्टॉक ओपन होता है और क्लोजिंग जो है वो ऊपर आती है, तो हम उस पर्टिकुलर कलर का, कैंडलस्टिक का जो कलर होता है या तो ग्रीन होगा या व्हाइट होगा। ऐसे ही उसके अपोजिट जो जहाँ पे स्टॉक ओपन होता है उस पर्टिकुलर डे पे, जैसे हम डेली चार्ट का एग्जांपल है, तो उस पर्टिकुलर डे पे जिस रेट पे ओपन हो रहा है और जहाँ क्लोजिंग यदि उससे नीचे होता है, तो उस कैंडलस्टिक का जो कलर है वो आपको ब्लैक या रेड मिलेगा, राइट। नाउ दिस वाज अबाउट रियल बॉडी। इसके अलावा विक बोलते हैं या शेडो बोलते हैं। तो शेडो का मतलब वो होता है जिस रेट पे स्टॉक क्लोज हो रहा है, जैसे भी यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो क्लोज हो रही है जैसे हायर लेवल पे, जो जहाँ पे उसका क्लोज है, वहां से लेके उसने स्टॉक ने जो हाई मारा है वहां तक का जो डिफरेंस है, दैट मीन्स जिस रेट पे स्टॉक ओपन हो रहा है और वहां से हाई तक का, अपने एग्जांपल के अंदर क्लोज से हाई तक का और ओपन से लो तक का जो शेडो है, जो ड्यूरिंग द डे प्राइस वहां पे टच करें बट उस रेट पे ओपन या क्लोज नहीं हुए हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड शेडो या विक बोलते हैं हम उसे। So this was just basic, एक touch-up के लिए. So I guess without further delay, we can start with the strategy for the day. So Rohan, you can start with the strategy. Hello, I am audible? Yeah. You are audible now, Rohan. Yeah. So let's start with the strategy that is inside wick. Basically, the advantage of this strategy is कि आपको ये clearly मतलब easily visible है, आपको ज़्यादा complex नहीं है. You can easily go and view this strategy on the chart, not to complicate and nothing. Just आपको candlestick देखना है और ये condition fulfill होता है जो मैं बताने वाला हूँ. So this is very much simple to understand for a layman as well. And this strategy we are using regularly to generate the recommendation for our clients, and it's quite profitable as well. So we decided to share this profit strategy to attendees as well. Now let's go in deep. Okay, what is inside wick? तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है, सेटअप है, उसके मिनिमम 2 कैंडलस्टिक लगते हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा रहेगा यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट कैंडल जो इतना पड़ा है और उसका जो वीक फॉर्म हुआ है, जैसे कि हंसराज सर ने पहले बताया वीक का डेफिनेशन क्या होता है। तो सिमिलरली दैट इज द फर्स्ट कैंडल, एंड सेकंड कैंडल जो फॉर्म हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। द सेकंड कैंडल फॉर्मेशन शुड बी उसका हाई, क्लोज और ओपन ये वीक के अंदर होना चाहिए, ये वीक का जो रेंज है उसके अंदर फॉर्म होना चाहिए। तो ये सिग्नल करता है कि अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है तो इट शोज कि मोमेंटम स्क्वीज हो रहा है, और जब भी मोमेंटम स्क्वीज होता है और जब भी ब्रेकआउट होता है तो मूव काफ़ी फास्ट डिटरमाइन होता है। तो एक मेन लॉजिक इज कि वी आर फाइंडिंग फॉर द स्टॉक्स विच आर विल बी शोइंग गुड मोमेंटम वंस द ब्रेकआउट इज हैपनिंग। ये स्ट्रेटेजी हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और डेली में भी यूज कर सकते हैं। एज दिस इज द वेबिनार फॉर इंट्राडे, तो वी विल फोकस ऑन हाउ टू यूज दिस स्ट्रेटेजी इन इंट्राडे। तो ये स्ट्रेटेजी हम 60 मिनट्स में यूज करेंगे, ओके। एंड फॉर इंट्राडे वी विल यूज फॉर 60 मिनट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ये स्ट्रेटेजी से, तो यू कैन लुक फॉर डेली चार्ट एज वेल। Now moving to the next point, ये strategy breakout strategy है, meaning that we will take the position once the high of the candle, first candle is broken. On the higher side we will take long, and similarly on the opposite, if the low of the first candle is taken out, we will take the short position. As I explained earlier कि ये logic behind using this strategy is to take the advantage of the quick move, to take the to find the stocks which are has paused this momentum, and once it show a breakout can lead a good upside momentum, good upside move. So after understanding what is inside wick, let's move on to कि मतलब what should be the entry, stop loss और target क्या होना चाहिए अगर ये strategy हम use कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले बताया कि अपना एंट्री हमेशा होगा फ्यू पॉइंट्स अबव और बिलो दी हाई और लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है कि थर्ड कैंडल ने जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, आवर पोजीशन विल बी टू एंटर द ट्रेड। तो सिमिलरली ऑपोजिट, अगर
आगे जाके अगर ये लो ब्रेक होता तो वी विल लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो सिमिलरली अपना एंट्री हो गया इसके ऊपर, एंड so the next point is to find the stop loss or target. In this case, in this strategy, we have experienced that 1% stop loss should be kept from the entry price or from the high of the first candle or low of the first candle. So our stop loss will be 1%, and the potential target you can expect is in the range of 1.5% to 2% on the same day. अगर हम इंट्राडे में यूज कर रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 1.5% to 2% in most of the cases once the stock is given a breakout from this strategy. I hope that everyone is clear entry, stop loss and target. एंड सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने कुछ एग्जांपल्स भी रखे हैं जो हम लोगों ने क्लाइंट को रिकमेंड किए थे, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अटेंडीज. सो नाउ लेट्स मूव टू द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी हैव हाइलाइटेड. This is, as you can see, this is the ACC hourly chart. ये अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ था. यू कैन सी ओवर हियर कि मैंने हाईलाइट किया है कि दिस इज द इनसाइड विक स्ट्रेटेजी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. ये फर्स्ट कैंडल है, उसका विक यहाँ से लेके यहाँ तक ये विक है, और सेकंड यू कैन सी कि सेकंड कैंडल जो फॉर्म हुआ है वो फर्स्ट कैंडल के विक के अंदर ही पूरा फॉर्म हुआ है. यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, ओपन और क्लोज वीक के अंदर ही है. तो दिस गिव्स सम हिंट के मोमेंटम स्क्वीज हो रहा है, और अगर ये क्या ब्रेक होगा अपसाइड पे तो वी कैन सी अ गुड अपसाइड पोटेंशियल. Rohan, sorry to disturb to come in between. Mr. Prashant was just requesting to repeat the earlier slide again, please. Okay. So should I repeat entry, stop loss and target या पूरा repeat करना है? रोहन वापस से पूरा स्ट्रेटेजी बता दो वापस से. So some people have strategy and with entry, stop loss and target. Okay, Yeah. fine. Thank you, Rohan. फिर से स्टार्ट करते हैं. ये इनसाइड विक स्ट्रेटेजी है, उसमें मिनिमम 2 कैंडलस्टिक का यूज होता है. तो इसमें फर्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसका जो विक फॉर्म हुआ है उसके अंदर ही सेकंड कैंडल फॉर्म होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सेकंड कैंडल का ओपन, हाई एंड क्लोज शुड बी इनसाइड द रेंज ऑफ द विक. ये जो विक आपको दिख रहा है फर्स्ट कैंडल का, अगर ये तीनों इसके अंदर हो रहा है then condition is satisfied, and we will use this strategy in intraday with the help of 60-minute chart. और swing trading करना है तो you can take a daily chart. So as our webinar is more focused on intraday, we will go in depth in intraday, that is 60-minute chart with few examples, and entry and stop loss will be discussed later. This is the breakout strategy. हम हमेशा पोजीशन लेंगे वंस द हाई और लो इज ब्रोकन आउट. जैसे कि ये एग्जांपल में हाई ब्रेक हुआ है फर्स्ट कैंडल का, तो अपना पोजीशन रहेगा टू टेक द लॉन्ग पोजीशन. एंड सिमिलरली अगर दूसरा कैंडल, ये कंडीशन हम लोग ने इसमें रखा है वो फुलफिल हो रहा है और ये नीचे का लो ब्रेक हो रहा है फर्स्ट कैंडल का, तो आवर आइडिया विल बी टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन. ऐसे कि पहले बताया कि जो main logic behind using this strategy is to take the advantage of the quick move. So quick move क्योंकि यहाँ पे जो momentum squeeze हो रहा है उसके बाद जो breakout होता है generally show good upside momentum और downside momentum in case ऐसा breakout हो रहा है. So I think it's clear कि what is inside wick, what are the condition to be followed, कहाँ पे अपना position determine करना है. So let's move to a specific entry, stop loss and target. जैसे कि पहले बताया कि अपना एंट्री होगा हमेशा फ्यू पॉइंट्स अबव फर्स्ट कैंडल हाई और लो. आफ्टर असेसिंग द एंट्री पॉइंट, आवर नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट इज टू टेक द स्टॉप लॉस. अपना स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इन दिस केस द स्टॉप लॉस शुड बी 1% बिलो द एंट्री प्राइस और द 1% बिलो द हाई ऑफ दिस फर्स्ट कैंडल और लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल. सो इन दिस केस अपना स्टॉप लॉस रहेगा ये हाई के 1% के नीचे, एंड टारगेट आपका एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो इन द रेंज ऑफ 1.5% to 2% रेंज. तो दिस आर द क्विक एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट. आपको कैसे ये ट्रेड करना है. सो टू अंडरस्टैंड द बेटर, लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स व्हिच वी हैव शेयर्ड, व्हिच वी आर गोइंग टू शेयर. और ये कुछ एग्जांपल्स वैसे है कि हमने रिकमेंड भी किए थे क्लाइंट्स को फॉर इंट्राडे एज वेल. Rohan, can you be a little louder, please? Okay.
the first example is of ACC. Is it clear now? Yeah, but a bit louder because some of our audience cannot hear you. Okay. The first example is of ACC. इसमें जैसे कि मैंने highlight किया है ये दो point. This is the first candle and this is the second candle of the wick which has the range has been formed on the first candle. तो अपना आइडिया है कि जैसे कि ये ब्रेकआउट होगा फर्स्ट कैंडल का हाई जो कि 1241 के ऊपर अपना बाय सिग्नल आता है जनरली यूजिंग दिस स्ट्रेटजी. So you can see 1241 ka the entry point will be and stop loss similarly will be 1% lower, that is below 1230. And on the same day you can see the stock has quietly moved on the higher side. Every hour green candle ही आपको दिख रहा है और high form हुआ था 1258 का जैसे कि which is approximately our target ratio. Now let's move on to another example that is of Tata Steel. ये भी recent example है और ये हम client को भी recommend किया था. You can see कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो कैंडल फॉर्म हो रही है फर्स्ट कैंडल के वीक के रेंज के अंदर. तो वन मोर पॉइंट टू नोट ओवर हियर कि जितना ज़्यादा कैंडलस्टिक फॉर्म होगा इनसाइड ये वीक के बाद, जैसे कि यहाँ पे दो कैंडलस्टिक है, उतना ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा स्टॉक का परफॉर्म करने का. तो यू कैन सी कि यहाँ पे दो कैंडल है फर्स्ट वीक के अंदर विच शोज के मोमेंटम काफी स्क्वीज हो गया है और अगर ब्रेकआउट होगा इन द फेवर ऑफ बुल्स तो मूव काफी फास्ट डिटरमाइन हो सकता है. तो सेम वे जैसे कि एक्सपेक्टेशन था वैसे ही मूव हुआ. अपना बाय सिग्नल आता था 307 के ऊपर एंड सिमिलरली इफ यू टेक बाय एंट्री ऑफ 307 आवर स्टॉप लॉस विल बी प्लेस्ड बिलो 303 एंड यू कैन सी ऑन द आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट द शार्प मूव वाज सीन इन 3 आवर्स. जैसे कि ये कैंडल आवरली का है. तो आफ्टर ब्रेकआउट शार्प मूव हमने दिखा और वही दिन पे हाई 320.50 का टच किया था. सो यू कैन सी कि कभी कभी टारगेट भी शॉर्ट हो जाते हैं इफ द मोमेंटम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑन द बुल साइड. The next example is of Laurus Lab that is which was seen on 20th. You can also see over here कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके बाद इसमें भी दो कैंडल इनसाइड द वीक था विच हिंट्स के अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मूव अच्छा खासा दिख सकता है एंड विल बी अ हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप. तो सिमिलरली आवर सिग्नल वुड बी अबाउ 453 एंड अगर 453 का बाइंग पॉइंट है तो स्टॉप लॉस रहेगा 1% बिलो, दैट इज बिलो 449. And similarly, on the higher side, we can see the stock made a high of 462, which is very much touch our target ratio, that is 1.5 to 2% range. Moving to the next example, that is M&M. Similar setup, जैसे कि first candle यहाँ पे form हुआ, उसके बाद दो candle जो form हुए, that were formed inside the range of the first candle week, and similarly our this entry level will be above 396 and you can see once the breakout is spotted on the higher side the stock immediately made a high of 403.5. मतलब within a very short period of time momentum इतना fast आया कि एक घंटे में you can see clearly the अपना target achieve हो सकता था. So these are the few examples on the higher side. One more example I have spotted over here, that is मारुति का भी आप देख सकते हो क्लियरली फर्स्ट कैंडल यहाँ पे था, उसके बाद सेकंड कैंडल जो फॉर्म हुआ वो वीक के अंदर ही पूरा फॉर्म हुआ है. सो यू कैन गेट आइडिया कि अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो वी शुड हैव अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस स्टॉक. वैसे ही हुआ, स्टॉक ब्रेक अबाउट द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल दैट इज अबाउट 4974 एंड क्विकली इन जस्ट 2 or 3 candles stock made a high of 5075. So these are the few examples on the long side. Now let's see some example on the short side कि अगर short करना है, market weak है, तो ये setup कैसे होता है. तो similarly opposite ही देखना है, nothing complex. जैसे कि higher side पे देखा था, in the long side the body was on the higher side. Similarly on the short side the candles will be on the lower side of the first candle week. So this is the RBL Bank chart. ये काफ़ी ये पर्पसली मैंने ये ऐड किया है क्योंकि अगर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो डाउन साइड पे तो यू कैन सी कि कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है. तो अपना सिग्नल आया था 127 पे एंड ऑन द सेम डे द लो मेड वाज 117.5. तो यू कैन सी कि
more than 8 to 9% एक ही दिन पे was we were able to achieve. So this is the potential of the candle. For sure कि ये every day आपको नहीं मिलेगा, but this is like a jackpot type. कि अगर momentum काफी strong है downside पे, तो this is the one stock we should look for short. Moving to the second example, that is Berger Paint. इसमें काफी सारे स्टॉक्स, काफी सारे कैंडल्स कंसोलिडेट कर रहे हैं. मोर 1 2 3 and 4. 4 candles were inside the range of the first candle week. You can clearly see, मेरा कर्सर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4. So you can have गुड आइडिया कि अगर ये स्टॉक फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है तो हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए. Our position should be on the sell side and sell signal was generated below 486 level. So यहाँ पे अपना सेल एंट्री ट्रिगर हुआ जैसे ही स्टॉक ने लो ब्रेक किया फर्स्ट कैंडल के लो का. And on this just after in 1 hour the stock made a low of 478.5. So it was approximately in the range of our target, that is 1.5 to 2%. This is the second example of PVR. Another example of PVR. Same वही स्ट्रेटेजी है कि मतलब फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पे एंड सेकंड कैंडल वाज फॉर्म इनसाइड द रेंज ऑफ द फर्स्ट कैंडल. ओपन क्लोज और लो तीनों यही रेंज के बीच में हुआ था. तो कंडीशन सेटिस्फाई होता है और अपना सिग्नल शॉर्ट का होगा बिलो 1037 के नीचे. वंस इट ब्रोकन 1037, the stock quickly made a low of 1005, which is approx more than 2% in just 1 hour. So this is beauty of this setup. And this is the another example of TCS. जब भी काफी IT स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो जब तभी ये स्टॉक ने भी ऐसा सिग्नल दिया था कि you should look for a short opportunity in this stock. Our short signal generated below 1980, that is low of the first candle, and the low made on the same day was 1925, which is more than 3% approximately. I hope everyone is clear with this strategy. Rohan, there are a few people who are requesting to explain RBL again. But I suggested that we could do that after the webinar is over. Yeah, we will take the questions after the webinar. We will come to, we'll explain more. And we are going through some of the questions which people have asked. So, we'll just narrate down. Till the time we are giving you some exercise, you can continue on. Yeah. So I hope everyone is clear. And let's see कि अगर आपको ये पैटर्न इतना इजी मैंने बताया तो आप स्पॉट कर पा रहे हो या नहीं. तो दिस इज द चार्ट ऑफ इंट्राडे आवरली चार्ट. सो इफ यू कैन स्पॉट द पैटर्न कि अब पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कहाँ अपना एंट्री होगा, तो यू नोट डाउन एंड कीप इट इन योर माइंड. आई विल जस्ट शेयर द आंसर इन 1 or 2 minutes. So shall I disclose the answer? Yes, Rohan. Yes, please. Yeah. So here is the pattern. यहाँ पे था. This is was where the pattern was formed. So this is the conditions के buy कहाँ करना है, sell कहाँ करना है. I hope everyone would find it very easy to spot it. So in this example, our buy signal would be above 1357 and stop loss 1% below the high of this candle or entry point. And the high was formed was around 1446. Okay, so now as we have discussed this pattern, I've gone through some of the questions randomly.
So just to answer some of your queries, first is the time frame which we have taken is 60 minutes. That is hourly chart. That is one thing. Second thing, people have asked whether color of the candlestick is important. So color of the candlestick is not important here. हम जो भी देख रहे हैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो पूरा हमारा जो लॉजिक है, ये someone has asked कि ये स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है. लॉजिक इज मोमेंटम स्क्वीज. सो जनरली आपने देखा होगा, लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस, देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन डू. आइदर या आप रिवर्सल के ऊपर ट्रेड कर लें कि मेरे को ये स्टॉक काफी नीचे लग रहा है और ये रिवर्स हो जाएगा वहां से, या फिर कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर लें. तो दिस इज मोर अबाउट कंटिन्यूएशन पार्ट. ये कई बार अपन देखते हैं एक शार्प मूव आता है स्टॉक के अंदर, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन के बाद उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है, तो हम देखते हैं स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है और हम बोलते हैं कि ये जो साइडवेज मोमेंटम आया था ये कंसोलिडेशन था और एक्यूमुलेशन था, एंड नाउ स्टॉक इज मूविंग फर्दर हायर. तो लॉजिक उसका ये है एंट्री का. सेकेंडली, वन मोर क्वेश्चन विच people were asking about the target and stop loss. So there is no hardcore stop loss and targets for the same, but yes, as per our experience, कैसा होता है स्टॉक का जो नेचर है. अभी हम कई स्टॉक्स देखते हैं जिन जो बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल है, उनके अंदर आपको ऑफकोर्स जो रेंज रखनी पड़ेगी आपके स्टॉप लॉस और टारगेट की, वो हायर रखनी पड़ेगी. एज अ प्रिंसिपल रूल जो हम लोगों ने हमारे एग्जांपल्स के अंदर कभी भी यूज करा है, स्टॉप लॉस इज अराउंड 1% एंड योर टारगेट इज बिटवीन 1.5 to 2%. ऐसा हम लेकर के चलते हैं. So this is I guess I'm able to answer most people what they asked. Now I guess Rohan, examples are done, right? Yeah, it's examples Okay. are done. So you can come on to that slide, the slide, the profitable of course. This part Yes. is remaining. हाँ हाँ, ये वाला बोल दो. जैसे कि बताया था कि ये स्ट्रेटेजी डेली में भी यूज कर सकते हैं और आवरली में भी यूज कर सकते हैं. So we have find out some pattern. ये फॉर्म हुआ था on the last trading session. So we have plotted the example and on the Monday you can go visit this pattern. So these are the few example. Coal India. This is a daily chart of Coal India. ये पैटर्न यहाँ पे कल मतलब ये फ्राइडे को फॉर्म हुआ था. तो दिस इज इनसाइड वीक पैटर्न. So once the high is taken out of the first candle, you can look for a entry position. So first stock is Coal India, second is City Union Bank, and third one is Syngene Limited. So these are the three stocks we find out कि ये pattern form हो रहा है. So you can on Monday you can keep a watch on these stocks. So now moving to the next session will be by Hansraj sir. So over to you sir. Thank you. Another question which people were asking was to wait for the break closing above the high of the first candle. No, that is not the case, because intraday the momentum is very fast, so you cannot wait for it to close above that particular level. As soon as it crosses that level, you can go for entry. Now I'll come on to the other part of the webinar. So as I was highlighting at the start, that people are looking for some particular setup strategy which can give good returns. So जितना strategy important है, एक तो हाँ strategy पे भी ये बोलना, जैसे भी हमने कुछ examples देखे, so we might have discussed around approximately 10 examples. So before actually start applying this strategy, just go and check in the past. आप काफी सारे एग्जांपल्स लेकर के पास में देख सकते हैं, उसमें 5-10 एग्जांपल सफिशिएंट नहीं होते हैं, बिकॉज ये तो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सेटअप की बात करी. इसके साथ में जब हम एक्चुअल डिसीजन लेने जाते हैं तो काफी चीजें आती हैं कि समझो मार्केट का फेज हो गया, वोलेटिलिटी हो गई, सेंटीमेंट हो गए, बहुत सारी चीजें आती हैं. सो टू नो योर स्ट्रैटेजी, आपने जो भी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, मास्टर कैंडल डिस्कस करा था, आप उसके सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स देखिए, 25-50 एग्जांपल एटलीस्ट हो जाए, एंड सो दैट एटलीस्ट यू विल कम टू नो द नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी, कि एक फॉलिंग मार्केट के अंदर आपका कैसा स्ट्रैटेजी परफॉर्म करता है, एक राइजिंग मार्केट में कैसा होता है, साइडवेज में मैं कैसे कर सकता हूँ. एक पर्टिकुलर सेटअप को वर्क करने का कई बार एक एनवायरनमेंट भी चाहिए रहता है. जैसे कई बार ये हमने अभी देखा कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क कर सकता है. So by going on to a good number of examples, you will come to know. So this was about strategy part. Now जितना strategy important होता है, उतना ही मैं कैसे उसे execute करता हूँ, that might be even more important. आप देखिए कई traders अपने देखे होंगे कि they are not following any particular strategy, या उनका strategy काफी clustered होगा, एक
स्कैटर्ड होगा, सॉरी नॉट स्कैटर्ड होगा, जो उन्होंने सब प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बना रखा है, then also they are able to gain out of market. So what we did is we tried to have a normal simple basic maths which can actually clear lot of confusions. हम जो कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि यार मेरे को ट्रेड करना है, अभी ट्रेड करने के लिए मैं क्या देखूं, मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है उसके अंदर सक्सेस रेशियो अच्छा होना चाहिए, या मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर मेरी रिस्क एकदम कम होगी या रिस्क ज़्यादा लेके काम करूं, मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितनी रखूं, ज़्यादा रखूं, कम रखूं, और एट द सेम टाइम मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कितना परसेंट अलोकेट करूं. These things are very important. So this is how looking on to these things we try to make a model, एक basic maths calculation करा है. So we are not going theoretical here. Full जो भी हम expectation रखते हैं especially from intraday point of view, उसको हमने एक example लेकर के explain करा है. So I'll come on to that part. I'll show you some the plan which we have made. Talking about trading plan, actually trading plan is why that is important is before actually going for trade you should know कि एक probability क्या है आपके आउटकम आने की. कईयों बार लोग स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं दे थिंक यार लक वाली बात है, मेरा लक चलता है उसका नहीं चलता है, या उसका चलता है मेरा नहीं चलता है, वॉट एवर. So and actually the movement is so dynamic and so fast changing that you are not able to actually expect a desired outcome. आप कहीं ना कहीं एक एम्बिग्यूटी रहती है, या फिर हमारी एक स्ट्रैटेजी फिक्स नहीं होती है, तो हम यही सोचते रहते हैं मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, मैं पोजिशनल करूं, या इंट्राडे में करूं तो कितने ट्रेड करूं, कितनी रिस्क लूं. ये तो ट्रेडिंग प्लान का बेसिक मतलब यही है. इसके अंदर आप अपने आप को डिफाइन करते हो कि व्हाट काइंड ऑफ रिस्क एपेटाइट यू कैन हैंडल, मैं किस टाइप का मेरा टेम्परामेंट कैसा है ट्रेडिंग के अंदर, मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो को कितना चर्न कर सकता हूँ. ये सब चीज़ों को जब मैं एक जगह नोट डाउन कर लेता हूँ, तो दैट इज हाउ योर ट्रेडिंग प्लान इज मेड. सो दिस इज इंक्लूडिंग योर रिस्क एपेटाइट, योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन. फिर मेरे को रिस्क कैसे मैनेज करना, सिंस एज वी डिस्कस यहाँ पे भी हम जो स्ट्रेटेजीज का बात कर रहे थे, द इंट्राडे मोमेंटम इज वेरी फास्ट एंड डायनामिक. सो इट्स नॉट कि मैंने आज स्टॉक ले लिया है और अभी 4 दिन तक वहीं के वहीं पड़ा है तो मैं उसे होल्ड रहने दे सकता हूँ. और कई बार होता है जो एक कॉमन मिस्टेक्स है, हमने देखा है कि इंट्राडे के लिए हमने कोई पर्टिकुलर ट्रेड लिया है, वो इंट्राडे नहीं चला तो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है. दिस हैपेंस विद मोस्ट पीपल जो हमने देखा है. सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो डिसिप्लिन बनाया है वो फॉलो करना है, और इवेल्युएशन. सो विदाउट फर्दर डिले आई विल कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. या सो एक मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है यहाँ पे. इसके अंदर व्हाट वी ट्राइड हियर इज एक मैंने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लिया है कि मैं कितने ट्रेड्स डालूंगा, हर ट्रेड के ऊपर मैं कितना परसेंट अलोकेट करूंगा. जैसे मैंने मेरे एग्जांपल के अंदर यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल लिया है, 30% का अलोकेशन करा है, मतलब हर ट्रेड के ऊपर मैं 30% अलोकेट करूंगा, विच कम्स टू 30,000 पर ट्रेड. मैं मंथ के यदि 60 कॉल्स करता हूँ, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज दिन के 60 ट्रेड दिन के 3 ट्रेड में करता हूँ, और उसके अंदर मैं सक्सेस रेशियो 50% ही मिलता है मेरे को. हर ट्रेड के ऊपर मैं 1.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैक्सिमम मैं 1% का रिस्क ले लेता हूँ. तो मेरा एट द एंड पे ऑफ क्या होगा, आउटकम क्या होगा उस मेरी स्ट्रैटेजी का, यहाँ पे हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं. सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे जब हम अपना मॉडल बनाते हैं, अभी यहाँ पे होगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि यार इंट्राडे के अंदर मैं सिर्फ 1.5% की जगह मैं 2% क्यों नहीं एक्सपेक्ट करूँ, 3% क्यों नहीं करूँ, 4% क्यों नहीं करूँ. या फिर इफ आई गो ऑन टू टॉक इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेशियो, मैंने यहाँ पे सक्सेस रेशियो 50% का लिया है. रीजन इज जब हम हमारा कोई भी एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो देयर इज अ टर्म मैनेज द डाउनसाइड, द अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. दैट विच मीन्स आप सिर्फ आपका फोकस लीकेजेस पे ध्यान दीजिए कि जब भी मेरा कैपिटल जो जाता है उसके अंदर मैं लीस्ट खोऊं, अपसाइड तो अपने आप फिर आ जाएगा. यदि मेरा उस लीकेजेस पे ध्यान है तो अपसाइड में डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं, जैसे मार्केट में गैप डाउन्स होते हैं वैसे साथ में गैप अप भी होते हैं. मेरा यदि लॉस लिमिटेड है, फिक्स है, मैंने एक डिफाइन कर रखा है, तो अपसाइड को तो मैं अपने हिसाब से ट्रेल करके इंक्रीज कर सकता हूँ, बट लॉस इज समथिंग विच आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट. अनदर एस्पेक्ट इज कई जगह लॉस पीपल टेक दैट एज अ शॉक कि यार मैंने ट्रेड करा, लॉस हो गया, मंथ में 20 दिन ट्रेड करा, मैंने 10 दिन लॉस हुआ, या 5 दिन लॉस हुआ, 15 दिन लॉस हुआ.
उन सारी अनसर्टनिटीज जो हो सकती हैं उनको मैं इनकॉर्पोरेट करके फिर ये प्लान बनाऊं। तो मैंने जैसे बताया था मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मेरे एट द एंड ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर मेरी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक कितनी है। मैं कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका 50% सक्सेस रेशियो हो। मैंने यहाँ पे जो भी इंक्लूजन्स करे हैं यू कैन कंसिडर कि ऑन द लीस्ट साइड करें। जैसे मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करता हूँ तो आइडियली आपने सुना होगा कोई भी बोलता है यार तुम है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखो, 1:3 का रखो, तुमको पैसा लगेगा ही नहीं मार्केट के अंदर, एट द एंड यू विल बी गेनिंग ओनली। सो मैंने अपने एग्जांपल में 1.5 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है। रीजन बीइंग कि यदि मैं वर्स्ट कैलकुलेशंस लेके वर्स्ट आउटकम्स लेकर के कैलकुलेशन करता हूँ और उसके अंदर यदि मैं कुछ भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है या बिकॉज ऑफ माई स्किल्स आई एम एबल टू अचीव बेटर सक्सेस रेशियो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या फिर और कुछ मेरे मैट्रिक्स चेंज करके कुछ मैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को बेटर बना सकता हूँ, देन ये जो मेरे को सामने रिटर्न है दैट कैन इंक्रीज मल्टीफोल्ड। हम इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं जो हमने स्टैंडर्ड देखा, 1 लाख की कैपिटल से मैंने वो करा, टोटल कैपिटल है 30,000 का, पर उस पर करता हूँ मैं 50% सक्सेस रेशियो ही लिया है मैंने यहाँ पे, और 1.5% का गेन है और 1% का लॉस है। 50-50 मतलब 10 में से मेरे 5 ट्रेड गलत चले जाते हैं। देन ऑल्सो एट द एंड ऑफ स्लाइड इफ यू कैन सी 4.5% का रिटर्न होता है। Why I wanted to present this and this, ये जरूर मैंने एक्सेल में कैलकुलेशन किया, अभी आपको मैं एक्सेल शीट भी शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर इनको मैं वेरी करके भी अपन आउटकम्स चेक कर सकते हैं कि हाउ दिस मैट्रिक्स कैन चेंज। बट पॉइंट इज दिस इज सिंपल प्लेन कैलकुलेशन विच एनीवन कैन डू ऑन अ सिंपल कैलकुलेटर, या इवन अपन जो बोलते हैं कि ओरली ऑल्सो यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। सो दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स thing which we are discussing, it is very easy, simple and basic, right? So now we'll do one thing, हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर हमारे मॉडल के अंदर जो हम यहाँ से चेंज करके देखते हैं। Ron, I want to share one screen, तो just a moment, यहाँ से होस्ट अलाउ करना मेरे को स्क्रीन शेयर के लिए। You are already allowed. Rohan, please exit from your screen. Okay, stop share. So is my screen visible? Yes, very clearly. Right. So see the I have this Excel in front of me. It is the same example जो हमने देखा था। At the end आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। You just focus on this particular पॉइंट, 4.5% का जो रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि हम हमारा जब प्लान डिसाइड करते हैं उसके अंदर हमारी 3-4 चीजें हैं, ये हमको डिसाइड करनी पड़ेगी। एक तो मैं कितनी रिस्क लूंगा, आइडियली लाइक से इंट्राडे वी डोंट रिकमेंड पीपल टू रिस्क मोर देन 1 और मैक्स 2% ऑफ देयर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। किसी भी पोजीशन के अंदर हम जो जनरली देखते हैं इंट्राडे के अंदर ऐसा देखा है जहाँ पे लूजिंग स्ट्रीम ज्यादा दिखी है वहाँ पे लोग 2-4% का स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम किस टाइप के स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने सब चीजें लीस्ट लेकर के कैलकुलेशन करा है। नाउ विल सी कि जस्ट बाय चेंजिंग सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस फॉर्मूला मैं अपने रिटर्न को कैसे चेंज कर सकता हूँ। सो कई लोगों को ये टास्क बहुत इजी लगेगा कि अरे यार 50% का सक्सेस रेशियो तो बहुत अच्छा है, 1% का तो मैक्सिमम रिस्क होता है, वैसे भी मेरे ट्रेड के अंदर 1.5% तो मैं बना ही रहता हूँ। सो जस्ट सी इफ आई चेंज माई सक्सेस रेशियो फ्रॉम 50 to 60%, योर रिटर्न हैज इंक्रीज डबल्ड। So instead of 4.5%, keeping all other parameters same, मेरा रिटर्न जो 4.5% का दिख रहा था मुझे वो 9% का आ गया है। जैसे हमने कई बार हमारे परफॉर्मेंस में भी आपको दिखाया होगा जो रिटर्न फिगर्स, तो पीपल वर एक्चुअली आस्किंग कि ये रिटर्न फिगर्स कैसे आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल जो एक सिंपल मैथ से जो सामने प्रेजेंट करा है। किसी को भी लगेगा यार 4.5% पर मंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो एक्चुअल रिजल्ट्स जो आते हैं आपके, वो आपकी ट्रेडिंग पे क्या रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं, कैसा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। बट दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू।
इसी को मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने सक्सेस रेशियो यदि यहाँ से 50 से 60 अचीव कर लिया, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि वर्स्ट में 50% ही कमाऊंगा, 50% का ही मेरा सक्सेस रेशियो रहेगा. इन केस इफ इट इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 60, द रिटर्न हैज जस्ट डबल्ड. ओके, और एल्स व्हाट आई कैन डू कि मैं यदि यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा जो रिटर्न है ये मैं या तो 1% का रखूँ. ओके, और सबसे पहली बात ये देख लीजिए आपकी, यदि मैं सक्सेस रेशियो 50-50 का रखता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, यदि कमाने में भी मैं 1% रख रहा हूँ और लॉस के अंदर भी मैं 1% रख रहा हूँ, तो एट द एंड यू आर जस्ट डूइंग लेबर, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. सो समवेयर समहाउ यदि मेरा सक्सेस रेशियो कम रहता है, देयर आई नीड टू वर्क ऑन माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ओके, इसको मैं जैसे जैसे बढ़ा सकता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना करा कि लॉस को 0.8% कर दिया और गेन को मैंने 1% ही रखा, या मैं इसको यहाँ से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फिर से कि आधा टका का ही मैं लॉस रखूंगा और 1% का गेन कर देता हूँ, तो अगेन आई एम बैक टू दैट 4.5%. इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यदि मैं 1% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, 2% का टारगेट रखता हूँ और 50% का ही सक्सेस रेशियो है मेरा, तो मेरा रिटर्न तो भी 9% होता है. So I'm not going. So this is not an example to give you expectation कि आप है ना मंथ का 5-10 टका कमा सकते हो and all. This is not that. It is more about कि आपका प्लानिंग किस हिसाब से हो, जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं, पहली बात तो वो रख के आपको रिजल्ट क्या दिख सकता है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज कि मैं क्या फैक्टर्स पे काम कर सकूँ, कितने रियलिस्टिक हैं, या कई बार अजम्पशन होता है लोगों का स्ट्रैटेजी पे कि यार कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में लेता हूँ या तो खुद फॉलो करता हूँ या कहीं से एडवाइसेस मेरे को मिलती है, उसके अंदर यार उनका सक्सेस रेशियो तो 50% ही है एक एग्जांपल के लिए, या उनका सक्सेस रेशियो 70% है. यदि यहाँ पे मैं 70% सक्सेस रेशियो फॉलो करता हूँ, राइट, गेन मेरा 1% आता है और लॉस में 1.2% जाता है, तो रादर मेरे को 2% का आपको लॉस होगा. सॉरी, 70% का मेरा सक्सेस रेशियो है. ओके, मेरा गेन 1% है और लॉस मेरा 1.5% है पर ट्रेड के ऊपर, देन आई एम लूजिंग इन दैट केस, सॉरी गेनिंग जस्ट बिकॉज मेरा सक्सेस रेशियो बहुत हाई है. और यही मैट्रिक्स यदि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 60% रख देता हूँ और मेरा लॉस जो है 1.5% का है, गेन 1% का है, तो एट द एंड आई विल बी लूजिंग, आई एम नॉट जनरेटिंग एनी रिटर्न्स. ये एग्जांपल्स उनके लिए है, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए. सो एज वी हैव डिस्कस, अच्छा एक और चीज़ है, एक तो हमने सक्सेस रेशियो की बात करी, फिर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का अपन ने डिस्कस करा. देयर आर 2 more elements which I want to discuss here. First is allocation. अब आप देखिए सेम अपने, आई विल कम बैक टू माय द प्रीवियस एग्जांपल जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमारा 4.5% का रिटर्न था. इसमें मैंने यहाँ पे देखिए अपने कैपिटल अलोकेशन जो है वो 30% रखा है. अभी 30% में कहीं जो कंजर्वेटिव लोग हैं कि यार मेरी भले 1 लाख की कैपिटल है, मैं बट 20% से ज़्यादा अलोकेट नहीं करूँगा. सो सी, बाय रिड्यूसिंग अलोकेशन फ्रॉम 30 to 20, माई रिटर्न्स आर लोड डाउन. जो मेरे को 4.5% था उसका वो 2/3 ही रह गया है. एट द सेम टाइम यदि मैं उसको इंक्रीज कर देता हूँ, 30 से 40% अलोकेशन कर देता हूँ, द रिटर्न्स विल गॉन अप बाय अनदर 25%. तो जो 4.5% का रिटर्न था वो 6% हो गया है. I hope I am able to convey the process कि एक्चुअली जितना स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आप कैसे ट्रेड को मैनेज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. अच्छा, कई जनों के लिए होगा, जैसे दोज दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. कई होंगे जो दिन के काफ़ी ट्रेड करते होंगे, 5-5, 10-10 ट्रेड करते होंगे, और कई होंगे जो दिन के 2 ट्रेड ही करते हैं. तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम कैलकुलेशन मैथ्स, वहाँ पे मैं कॉल्स को चेंज कर देता हूँ कि मैं जो मंथ के ट्रेड ले रहा हूँ वो कितने ट्रेड ले रहा हूँ. सो यहाँ पे जो मैंने लिया था नंबर ऑफ कॉल्स इन अ मंथ, मैंने 60 कॉल्स लिए थे. 60 ट्रेड्स जो मैंने करता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स, वो यदि मैं 60 रखता हूँ, 60 की जगह आई एम टॉकिंग अबाउट समवन जो दिन के 5 ट्रेड भी मार लेता होगा एग्जाम्पल के लिए, तो फॉर हिम द फिगर विल अगेन चेंज.
keeping all other things aside, if I am able to identify more opportunities during this time only with the same statistics कि मैं 30% का allocation करूंगा, 1.5% का मेरा target है, 1% का मेरा stop loss है, तो ये जो मेरा return है 4.5 का वो 7.5% हो जाएगा यदि मेरे ट्रेड्स इंक्रीज हो जाते हैं तो। एट द सेम टाइम यदि मैं उसी ट्रेड को करके मंथ के जैसे मैंने दिन के दो ट्रेड थे उसको मैंने 3 थे उसको 2 कर दिया है तो वही मेरा रिटर्न यहाँ पे श्रिंक होके 3% हो जाएगा। I hope everyone is able to understand the the logic here which I am trying to, or the thing which I want to highlight here. So जितना स्ट्रैटेजी आपकी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही आपका बैकएंड पे जो आपने प्रोसेस बना रखा है वो इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको बोला जब भी अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं, ट्रेडिंग प्लान में हैव लीस्ट एक्सपेक्टेशन सो दैट कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो यू आर एबल टू हैंडल दैट। Otherwise, people go in shock. Either they, become despair, or they become very greedy. कि अरे मैं इतना है पास्ट फ्यू डेज के रिजल्ट के बेसिस पे मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ कि अरे यार अब ये तो खराब गए 6 दिन, आगे का पूरा महीना खराब जाने वाला है, या मेरा दिन स्टार्ट हुआ है वो खराब ट्रेड से हुआ है तो आगे कुछ नहीं होगा। सो ये जितना भी कैलकुलेशन है आपके सामने, दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन these aspects which I shared just a moment. Yes. सो जब भी मैं मेरा ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ, ट्रेडिंग प्लान मेरा बनाना बहुत ज़रूरी है एंड इन दैट आई नीड टू डिफाइन दीज पैरामीटर्स जो हमने वहाँ पे देखे। सो रादर देन मेकिंग इट थ्योरेटिकल, वी एक्चुअली थॉट ऑफ कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रखें। तो दैट वाज अ सिंपल एंड प्लेन बेसिक मैथ। यहाँ पे कोई आपका, हमने वहाँ पे जो स्लाइड में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, हमने यहाँ पे कोई और स्ट्रैटेजी का इनपुट नहीं लिया है, यहाँ पे हमने और किसी भी तरीके का और कुछ इनपुट नहीं लिया है। इट इज जस्ट अ रोड मैप, काइंड ऑफ रोड मैप। मुझे पता भी चल जाएगा, या कई जनों का एक्सपेक्टेशन है यार मेरे को इतना तो मंथ का कमाना ही है या इतना परसेंट जनरेट करना ही है, तो फॉर देम दिस इज द वर्किंग विच दे कैन डू। एंड टू कम ऑन टू दैट पार्ट, आपको अपना रिस्क, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड्स, अभी जब ये एक अपना रोड मैप हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज इवैल्यूएशन ऑफ योर ट्रेड्स। जनरली आपने देखा होगा लोगों को कि पास्ट का जो ओवरऑल सीक्वेंस गया है ट्रेड्स का अच्छा गया है, तो वी आर जस्ट लुकिंग ऑन टू दो सेटअप्स, जैसे भी हमने आपको एग्जांपल दिए स्ट्रैटेजीज के जो हमें प्रॉफिटेबल लगते हैं। तो जितना हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं वैसे ही मेरे लूजिंग ट्रेड्स को भी मुझे एनालाइज करना चाहिए। और ट्रेडिंग प्लान से सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये रहेगा कि कई बार होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहाँ कुछ लॉस हो गया है, या लग रहा है कि जो कंसिस्टेंसी पहले चल रही थी वो नहीं हो रही है, तो बस जस्ट बाय गोइंग थ्रू दोज ट्रेड्स, लुकिंग ऑन टू योर पास्ट ट्रेड्स, आप उसके एक्चुअल रीजंस ढूंढ सकते हैं कि मैंने कहाँ क्या चेंजेस करे, मैंने जो प्लान डिसाइड करा था उससे मैं डिविएट हुआ क्या। बिकॉज ये जो सारा कैलकुलेशन है ये तभी वर्क करेगा जब मैं इसे डिसिप्लिन से फॉलो करूंगा। मैंने वहाँ पे यदि 1% के स्टॉप लॉस को 1.5 कर दिया जो हमने एग्जांपल देखा, तो एट द एंड मुझे 0% रिटर्न ही मिलना है एट द गिवन सक्सेस रेशियो। और यही मैं लीस्ट एक्सपेक्टेशन रख के मैंने मेरा सक्सेस रेशियो जो हमने एग्जांपल के अंदर देखा, यदि मैं 50 से उससे 60% कर देता हूँ तो माय रिटर्न्स वुड बी डबल्ड। So that kind of effort, if I'm able to put and it works in the direction I am expecting, then these return metrics can change a lot. So ये सब चीजें तभी होती है जब एक डिसिप्लिन फॉलो होता है और एक एवेल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए अपने ट्रेड्स को एनालाइज करने के लिए। So that's what I wanted to share with you all.
कि एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान अपनी जो भी आप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, और स्ट्रैटेजी के लिए भी मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स बिफोर एक्चुअली गोइंग ऑन टू start trading on any particular strategy. Just go through sufficient number of examples. So I guess this part is done. We can continue with inside wick, spot the pattern. Rohan? Yes, sir. This was the example left, right? Yes, this was the. Yes. So this is another example, inside wick से related. If you are able to identify inside the wick कैसा होता है, यहाँ कहाँ पे form हुआ था इस particular chart के अंदर, that you can identify, keep the answer with you, and after 1 minute we are going to display the answer. Then you can show the answer now. So here is the correct answer. That is. आवाज नहीं आ रहा है रोहन? Hello. Yeah. Yeah. So here is the answer. This is the inside bar pattern, inside wick pattern, and our sell signal was below 172. And you can see on the same day, the stock made a low of 166. So this was a shorting opportunity, which was seen in Tata Steel. So now I guess we can have Q&A session. So I'll just try to answer. Time frame जो लोगों ने पूछा है, that we have already discussed. 60 मिनट पे ये strategy discuss करा था. How to exactly inside with strategy. It is not about drawing a line. It is just about just to check the conditions. Conditions क्या हैं जो second candle है उसका जो range होता है except the low, वो तीनों जो point होते हैं ओपन, हाई और क्लोज, वो तीनों प्रीवियस डे की कैंडल के अपर विक के अंदर, जैसे बाय साइड का जो एग्जांपल लिया था उसकी विक के अंदर होना चाहिए. सो यू डोंट नीड टू एनी ड्रॉ एनी लाइन और समथिंग. is it not? Yes. So someone had asked कि 60 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत हाई है. Yes, इंट्राडे के लिए हैं लोग जो कई बार 5 मिनट पे काम करते हैं, 15 मिनट में काम करते हैं. बट as we told earlier also, हम यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं जहाँ पे हमें उसका रिलायबिलिटी अच्छा लगता है. कि अभी सेम इनसाइड विक स्ट्रैटेजी हो सकता है आप 5 मिनट पे चेक करें, 15 मिनट पे चेक करें. सो वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो उसका सक्सेस रेशो उधर उस टाइम फ्रेम पे इतना अच्छा हो. हमने आपको डेली का भी एग्जांपल दिया कि डेली पे भी वर्क करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है. बट सिंस द फोकस वाज इंट्राडे एंड वी वांटेड टू गिव यू समथिंग कि जिसका रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, so that's why we went for 60 minute time frame. Hansraj, sorry to interrupt. Can you put it on? Can you change the slide to the one which has our BP Wealth Club telephone number for WhatsApp and Telegram? This one, right? Yeah. Okay.
So how the wick is formed? Wick is a shadow. Shadow is, you know, nothing else but difference between the extreme points made during the day. तो जो आप देखते हैं कि हाई बन जाता है किसी स्टॉक का या लो बन जाता है, उसे फिर उसके करस्पॉन्डिंग ओपन या क्लोज से कंपेयर किया जाता है. तो जैसे ग्रीन कैंडल का या व्हाइट कैंडल का मैं डिस्कशन करूं तो क्लोज से लेके हाई का जो पॉइंट होता है वो अपर शेडो हो जाता है, और ओपन से लेकर के जो लो का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द लोअर शेडो और द लोअर विक. एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट आपको बताया ऑलरेडी कि एंट्री पॉइंट कैसे इसमें देंगे. जो पहला कैंडल है उसका हाई क्रॉस होता है दैट बिकम्स योर एंट्री पॉइंट. एंड एग्जिट पॉइंट के लिए हमें स्टॉप लॉस मैन्युअली लगाना है जो 1% का, एंड अकॉर्डिंगली टारगेट डिटरमाइन करना है. Someone has asked कि कौन सा सक्सेस रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कौन सा अच्छा है. तो एज आई सेड कि ऑलवेज इट इज बेटर टू गो फॉर लुकिंग फॉर ट्रेड्स जिसके अंदर मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो. ये हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए जहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कि रिस्क तो सामने 5 रुपए का दिख रहा है और रिटर्न मुझे 2 रुपए का दिख रहा है. तो हमें जब ट्रेड चूज करते हैं उस टाइम पे मेरा एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए. अच्छा, चूज करना ही बहुत ईजी है लोगों के लिए. मतलब जैसे टारगेट हम निकालते हैं चार्ट पे तो कईयों बार निकल जाते हैं कि यार, एक एग्जांपल के लिए फॉर दोज हु आर फेमिलियर, कि मैं 38.2% रिट्रेसमेंट लेने की जो है 61.8 देख लूँ तो टारगेट तो ऑटोमेटिकली हायर आ जाएगा. बट हाउ फिजिबल दैट टारगेट इज. तो रिस्क, जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ उस टाइम पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट मोर देन 1:2 का ही अटेम्प्ट करना चाहिए. और इन ट्रेडिंग दो चीजें हैं. यदि मैं सक्सेस रेशो, जब अपन एग्जांपल देखा था, सक्सेस रेशो मेरा 70% का 80% का होता है तो वहाँ पे लो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी चल जाता है. बट वहाँ पे एक कांस्टेंट कंपल्शन है आपके ऊपर कि उतने आपके ट्रेड्स राइट जाने ही चाहिए. So in as a thumb rule, always a risk reward ratio of, you know, you should try to achieve a risk reward ratio of more than 1.5, 1.2. Hansraj, one attendee asked, will it work for indices also? Yes, you can check this about this inside wick. Definitely you can check there as well. अभी इसमें कैसा है, थोड़ा सा एक सब्जेक्टिविटी होता है जब हम इसकी बात करते हैं. कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, वेदर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज वर्किंग ऑन ऑल द टाइम फ्रेम. जैसे 60 मिनट का किसी ने पूछा था, आई वाज गिविंग अ क्लैरिफिकेशन कि हमने देखा कि 60 मिनट पे बेटर वर्क करती है. वैसे ही कई स्टॉक की जो नेचर और वोलेटिलिटी होती है. अभी जैसे मैं आरबीएल बैंक का एग्जांपल था, वहाँ पे देखा अपन ने कि इंट्राडे मोर देन 5-7% का गेन हो गया था, रिटर्न हो गया था. वही जब हमने एग्जांपल देखा लाइक मारुति एंड अदर, तो वहाँ पे जो मूवमेंट आया वो 2% का था. सो एक तो मैंने आपको बोला एग्जांपल देख करके आपको चेक करना पड़ेगा खुद को. हमारे हिसाब से इट वर्क्स इन इंडाइसेस एज वेल. You can also go through if you find any questions. आंसर उनको पर्सनली आवाज बहुत कम आ रहा है रोहन आपका. मैं उनको पर्सनली प्राइवेट में आंसर सॉल्व कर रहा हूँ क्वेरी. ओके ओके. Hansraj, one Mr. Ajay asked, when you're giving intraday calls, are you giving the same on basis of candlesticks chart? No, so this is only one of the setup which we are sharing with you. Like this, there are numerous patterns which are there with us. So we select it based on the ongoing trend, as well as there are filtration in terms of which stocks are looking good or bad for the next day. So there are a lot of other things which goes on in the backend process. So it is not that we are giving only based on this candlestick, but yes, we have used this particular pattern and we found the results good of this particular strategy. So are there any scanners to spot stocks performing inside wicks? Yes, I guess a lot of websites are giving such kind of data. So yes, this is possible. You can real time scan these the stocks which are forming such kind of patterns, and you can take a call accordingly. Yes, someone has asked these strategies for only intraday. Yes, sir. So as the topic of the seminar is related to intraday, the full focus is regarding intraday only.
one person asked a question about the percentage. He said, "Do you mean 6% per day?" The calculation which we discussed, right? It is about that. Yes. No, So no, no. the It is about वो मैंने returns point monthly of view. calculation करा जो हमने वहाँ पे calculation बताया था the profitable approach के अंदर जो table दिया था that was a monthly calculation कि मैं month के अंदर कितने trade करता हूँ और वहाँ पे मैट्रिक्स रखता हूँ कि 1.5% का टारगेट 1% का स्टॉप लॉस एंड ऑल्सो दैट वे दैट वाज द रिटर्न फॉर द मंथ नॉट फॉर अ डे. अब वही यदि मैं दिन के 60 ट्रेड मारूंगा तो दैट वुड बी डिफरेंट बट द the plan which we shared was related to a particular month, not particular day. And if the target is not achieved till day, shall we carry trade to next day? No sir, we don't recommend that. Intraday means intraday. I mean क्योंकि क्या होगा फिर उसके अंदर जैसे ही मैं इंट्राडे से पोजिशनल पे चले जाता हूँ अब वेदर दैट कन्वर्ट्स टू नेक्स्ट 3 days पोजिशन नेक्स्ट 1 week or more than 1 week there the return expectations the volatility factor will change. So when I took a trade I was of the view to risk only 1% of my capital जो ट्रेड के अंदर मैं वो लगाना चाहता था वहां से और उसमें भी मैंने कितना एलोकेशन किया है समझो मैंने 30% का allocation किया है तो 0.3% of my entire portfolio is allocated to that particular trade. If I convert that to a positional trade में मेरे को नहीं लगता less than 3 to 5% का risk minimum होता है. In general, the kind of strategies which we are following. So in that case, don't do such thing कि just trade stock नहीं चलता है तो उसे intraday से carry over होके मैं next day लेके जाऊँ. One question is how to spot spot exactly the first candle, and how can you scan so many stocks? How do you scan so many stocks to find the inside wick pattern? Sorry, come again. There are two questions. One is how to spot exactly the first candle, and the second question is how do you scan so many stocks to find the inside wick pattern? Right. So stock selection is something. We are actually planning to conduct one more webinar talking about more about intraday and this trading approach which we discussed. So to start with, I answer these type of query by the same answer. आप जो भी अभी tools use कर रहे हैं उनको आपके ही stocks पे लगा के देखिए कि the kind of stocks you are comfortable with. I'm just giving you a starting point. So you can start applying these strategies on the stocks you are familiar with. Talking about how to identify first, so it is a combination. आप देखिए हमेशा कि second जैसे ही form हो रहा होगा और second का जो जैसे first candle मेरा यदि assume कर लीजिए 9:15 को market start होता है 10:15 पे complete होता है first मेरा हो गया सेकेंड जैसे मेरा 11:15 का कैंडल फर्स्ट के अंदर फॉर्म हो रहा होगा देन आई वुड कम टू नो एक एग्जांपल के लिए बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे ही हो इट कैन बी एनी अदर डे it is not mandatory कि it should be the first candle of the day. So that is how it works. One question more technical: how to draw a baseline with candlestick when which candlestick breaks? So it is not line. I mean, we are not plotting any trend line, any line here. The line which were plotted on the chart was to give you a reference कि उसका जो high point है candle का या low point है candle का, when it is getting violated or surpassed, at that time you are taking a trade. कि मैं जब उस कैंडल का हाई या लो क्रॉस हो रहा है मतलब जैसे हमने जो बुलिश सेटअप्स लिए थे वहां पे जैसे ही कैंडल का हाई क्रॉस करता है वैसे ही मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया एज पर द विक स्ट्रैटेजी. ऐसे ही जब मैं सेल की बात कर रहा हूँ तो लो जैसे ही उस फर्स्ट कैंडल का जो है फर्स्ट कैंडल मतलब फर्स्ट नॉट फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे जो दो कैंडल मिलके वो पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो जैसे क्रॉस कर रहा है वो मेरे को एंट्री पॉइंट मिलता है. So lines were just to give you reference कि इसका low cross हुआ है या high cross हुआ है. So you don't need to draw any trend line or any line for that matter. One more question we have: since the strategy gives momentum of price, is it reliable for trading options
for a quick. Your voice is very low. I cannot hear you. Since this strategy gives momentum of price, Huh. is it reliable for trading options for a quick move? So actually, we have not tested it that way, but you know, we won't recommend also. The reason being, option trading is a different ball game altogether. So it is not like हम जो options पे भी presentations लिए हैं उसके अंदर हमने explain करा है कई बार कि people do this thing कि cash के basis पे ही option के अंदर position ले लेते हैं. But there are lot of things which you need to take into consideration while trading options. जो हमारी अभी भी एक जो सीरीज ये जो चल रहा है हमारा इन्वेस्टर प्रॉफिट सीरीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर आल्सो कि ऑप्शन के अंदर जब हम काम करने जाते हैं व्हाई दैट सेगमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैश मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम एलिमेंट होता है, जैसे इंट्राडे के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी कि आज के आज ही वो ट्रेड यदि फुलफिल हो जाता है दैट इज फाइन, अदरवाइज यू एग्जिट दैट ट्रेड, बिकॉज जैसे ही मैंने उसको पोजिशनल करा वहाँ पे पूरा रिस्क कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा. द सेम गोज इन केस ऑफ ऑप्शन. ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है मैंने आज ले लिया वो 4 दिन स्टॉक नहीं चला तो 4 दिन स्टॉक यदि नहीं चलेगा वहाँ पे आई विल बी लूजिंग अ लॉट ऑन द टाइम वैल्यू. सो वी वोंट रेकमेंड दैट काइंड ऑफ अप्रोच हियर. For options you can join our upcoming webinar. So we have already taken I guess 3 webinars earlier related to options, and one is others are lined up, so stay tuned through our social media channels for the upcoming webinars. I guess we should round up this webinar now. I would like to thank everyone for sharing the valuable time with us. If anyone has any more questions that are more specific to technical research or sectors, kindly WhatsApp them to us on the following number on the screen. And we will make sure that anyone from our research team gets them answered to you at the earliest. You can also follow our YouTube, LinkedIn, Facebook, and other channels, especially YouTube, where all the recordings of the past webinars have been kept. In case anyone has any queries, as I mentioned earlier, you can please drop them by on our WhatsApp channel, and we are also there on Telegram as well. Yeah, so I guess thank you, Hansraj and Rohan, for this interesting. Thank you everyone for attending the webinar, and do leave your feedback as well as queries. We will try to answer all of them, and if those queries which are not answered, we will try to email the same to you. So do leave your queries in the Q&A session. I would also request the host to leave the webinar on for 5 minutes in case anyone wants to ask any questions. And yeah, that's it. Thank you, everyone. Thank you once again.